بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جو اپنی ہی دھن میں کچھ گنگنا رہی تھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گئی، اس لیے اس نے پوچھ ہی لیا۔ کچھ بھی نہیں، بس تمہیں دیکھنے کو دل کر رہا تھا، اس لیے تمہارے پاس چلا آیا۔ وہ تو تمہیں میری یاد آ رہی تھی، لیکن تم اندر کیسے آئے؟ باہر کا دروازہ تو بند تھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے بانو، بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو تم؟ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں تو بتاؤ، اس میں اتنا سوچنے والی کون سی بات ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں، کہاں سے شروع کروں؟ تم پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ ٹھیک طرح بتاؤ، کہنا کیا چاہتے ہو؟ اچھا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم مجھ سے دور نہیں جاؤ گی اور نہ ہی مجھ سے ناراض ہوگی۔ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے میں تم سے ناراض ہوں گی؟ پہلے تم وعدہ کرو پھر بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم سے ناراض نہیں ہوں گی۔ میں نے تم سے ایک جھوٹ بولا ہے۔ کیسا جھوٹ؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ کہ میں دوسرے ملک میں رہتا ہوں اور یہاں پر صرف کچھ وقت کے لیے آیا ہوں۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ میں یہاں نہیں رہتا، بلکہ میں تو… ارے کہاں جا رہی ہو؟ بات تو سنو، میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ آواز سن کر اس کے قدموں کو بریک لگا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی اس کی سوتیلی ماں صوفے پر بڑی شان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چند قدم چل کر ان کے پاس گئی اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پر وہ حیران ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی باتوں اور حرکتوں سے دوسروں کو پریشان کرتی تھی، اور اب تو یہ ایک معمولی بات بن چکی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بار بار مجھے اس طرح پیچھے سے آواز دے کر مت بلایا کریں۔ اب تو بابا بھی گھر پر نہیں ہیں، تو کس چیز کا دکھاوا کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، پر اس طرح کیوں مجھے بار بار تنگ کرتی رہتی ہیں؟ آخر اس سے آپ کو کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ میں نے کبھی تمہارا دل دکھانے کی کوشش نہیں کی، بس تم ہی مجھے برا سمجھنے کی ٹھان بیٹھی ہو۔ میں تو تمہارے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتی ہوں، لیکن تمہیں تو میری ہر بات ہی بری لگتی ہے۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن میں تو تم سے نفرت نہیں کرتی نا، میں تو تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سب چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ کل تم میرے ساتھ شاپنگ کرنے چلو گی؟ آپ مجھے کیوں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہیں؟ اگر مجھے اپنے ساتھ لے کر بھی جانا چاہتی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب مجھے بار بار اس بارے میں کچھ مت کہیے گا۔ وہ اتنا کہہ کر باہر کی طرف چلی گئی، جبکہ پیچھے اس کی سوتیلی ماں اسے آوازیں دے رہی تھی، جسے وہ انسنی کرتے آگے بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر سے گھر سے باہر نکل گئی۔ یہ دیکھ کر وہ باہر چلی گئی کہ اس کی سوتیلی ماں نے آوازیں دینا بند کر دی تھی، کیونکہ اب آوازیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی ماں کچن میں چلی گئی اور جا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کا نام گل بانو تھا اور اس کی عمر اس وقت 14 سال تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ بانو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خوش اور اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ 9ویں جماعت کی طالب علم تھی اور پڑھنے میں بہت ہی زیادہ ذہین تھی۔ وہ اپنی کلاس میں ہمیشہ ہی فرسٹ آیا کرتی تھی۔ اس کے والد جعفر کا اپنا بزنس تھا جسے وہ خود ہی چلاتے تھے، اور اس کی ماں گھر ہی میں رہتی تھی۔ وہ سب اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، جب ایک دن اچانک اس کی ماں عافیہ شدید بیمار ہو گئی تھی۔ پھر انہیں ایمرجنسی میں ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے عافیہ کے کچھ ٹیسٹ کیے۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق ان کی رپورٹس کلیئر نہیں آئی تھی۔ ان کو بلڈ کینسر تھا اور وہ آخری سٹیج پر تھی۔ ان کے پاس صرف 1 مہینہ تھا اور اس کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جانے والی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر بانو اور جعفر کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بہت پریشان تھے اور بانو تو مسلسل روتی جا رہی تھی۔ وہ اتنی بڑی تو تھی کہ اسے کینسر کے بارے میں علم تھا کہ یہ کیسا مرض ہے۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتی تھی اور کسی بھی صورت اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس سب میں وہ بے بس تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا اور اس کی قدرت کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ 2-3 دن بعد وہ عافیہ کو گھر لے آئے تھے اور پہلے سے زیادہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگے تھے۔ عافیہ کو اس کی بیماری کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، جسے سن کر وہ کچھ دن تو کچھ بول ہی نہیں پائی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس کے پاس صرف 1 مہینہ تھا اور وہ یہ 1 مہینہ بھرپور خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اداس نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ بیمار ہونے کے باوجود بھی پہلے جیسی دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے 1 مہینہ اپنی فیملی کے ساتھ خوشی سے گزارا تھا، اور وہ اس 1 مہینے میں بہت سی جگہوں پر گھومنے کے لیے گئے تھے اور وہاں پر ان کو بہت ہی زیادہ مزہ آیا تھا۔
बानो अपनी माँ के साथ सैर करने की वजह से बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही अपनी माँ की बीमारी को लेकर बहुत परेशान भी थी। लेकिन इस सब को उसने अपनी माँ या अपने बाबा के सामने जाहिर नहीं किया था, क्योंकि वो एक समझदार बेटी थी और अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन वो सब एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, जब आफिया की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसको खून की उल्टियाँ आने लगी, तो जाफर उसे वहाँ से अस्पताल ले गया और उसके साथ बानो भी थी। अस्पताल पहुंचकर आफिया को इमरजेंसी में ले जाया गया। बानो और उसके वालिद जाफर दोनों ही कुर्सियों पर बैठे थे और बेहद परेशान थे, क्योंकि बहुत घंटे गुजर गए थे, लेकिन अभी तक किसी भी डॉक्टर ने उन्हें कोई भी इत्तला नहीं की थी। वो अभी आफिया के लिए दुआ गो थे। जब अचानक ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर बाहर आया, तो जाफर जल्दी से उस डॉक्टर की तरफ मुतवज्जे हुआ और उससे आफिया की खैरत मालूम की। लेकिन डॉक्टर का जवाब सुनकर जाफर और बानो दोनों के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उस डॉक्टर ने कहा था कि आफिया अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर बानो फूट फूट कर रोना शुरू हो गई थी और जमीन पर गिर गई, फिर बेहोश हो गई। उसे इस हालत में देखकर उसके वालिद और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बानो को कैसे संभालें। वो बानो का चेकअप करवा कर घर वापस ले आए थे, क्योंकि आफिया की मैयत पहले ही घर आ चुकी थी। उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर रखा था, लेकिन अंदर से वो इतना टूट चुके थे। कुछ ही देर में बानो को होश आ गया था और वो अपनी माँ की मैयत के पास बैठी आंसू बहा रही थी। कुछ ही देर के बाद बानो की माँ आफिया को गुस्ल दे दिया गया और फिर नमाज जनाजा पढ़ाकर उसे दफना दिया गया था। बानो अपनी माँ के जाने के गम में बहुत ही ज्यादा निढाल हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ही तेज बुखार हो चुका था। डॉक्टर ने उसे कुछ अद्वियात लिखकर दी थी, जिसे खिलाने के बाद वो गुनूदगी में चली गई और फिर कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में उतर गई। कुछ दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पहले से बेहतर होती गई थी। अपने वालिद के दिलासों की वजह से बानो ने इस बात पर सब्र कर लिया था, इसलिए अब वो बिल्कुल भी नहीं रोती थी। लेकिन उसके दिल में अभी भी ये गम ताज़ा था कि उसकी माँ उससे बहुत दूर चली गई है। वो इस बात को कभी भी झुटला नहीं सकती थी। वो जानते थे कि उसकी वजह से उसके वालिद बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके वालिद उसकी वजह से परेशान हो। इसलिए उसने खुश रहना शुरू कर दिया था। दिन गुजरते जा रहे थे और वो अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस भी आ रही थी, जिसकी वजह से उसके वालिद बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि वो पहले से बेहतर हो चुकी है। उसने दोबारा से स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि पहले ही वो बहुत सी छुट्टियां कर चुकी थी। बानो दिन में कई मर्तबा अपनी माँ की तस्वीर से बातें करती थी, जिससे उसको सुकून मिलता था। वो रात को हमेशा अपनी माँ की तस्वीर अपने सीने से लगा कर सोया करती थी, क्योंकि उसके बगैर उसे नींद नहीं आती थी। बानो के दादा अब्बू और दादी अम्मा कई साल पहले वफात पा चुके थे। आफिया की मौत को 1 साल गुजर चुका था और ये 1 साल बानो के लिए बहुत ही मुश्किल गुजरा था। बानो को अपनी माँ की कमी बहुत महसूस होती थी। ये बात उसके वालिद जाफर बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने एक फैसले का इंतखाब किया था, और वो ये कि वो बहुत जल्द शादी करेंगे और बानो के लिए एक अच्छी माँ लेकर आएंगे जो उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आएगी। जाफर साहब ने इस बारे में बानो से बात करने का सोचा था। वो सारा दिन तो ऑफिस में रहते थे, इसलिए उन्होंने रात को बात करने का इरादा किया था। वो रात को जल्द ही ऑफिस से आ गए थे और फिर रात का खाना खाने के बाद वो बानो के कमरे में चले गए ताकि उससे इस मौजू पर बात कर सकें। वो उसके कमरे में दाखिल हुए तो बानो सामने ही बेड पर गाउन से टेक लगाए किसी किताब का मुताला कर रही थी। वो भी बानो के पास बेड पर ही जाकर बैठ गए, तो बानो उन्हें देखकर उनकी जानिब मतवज्जे हो गई। वो नहीं जानती थी कि वो यहाँ पर क्या करने आए थे, और ना ही उसने इस बारे में उनसे कुछ पूछा था। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जाफर साहब ने बानो से कहा। जी कहिए बाबा, आपको क्या बात करनी है मुझसे? देखो बेटा, मैं जो भी करने जा रहा हूँ वो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए है। इसमें मेरा कोई मफाद नहीं है। मैं रोज़ सुबह उठकर ऑफिस चला जाता हूँ और तुम स्कूल, और मैं रात को वापस आता हूँ और तुम घर पर पहले आ जाती हो, इसलिए तुम मुझे गलत मत समझना। इस सब में मैं तुम्हारी ही सोच रहा हूँ। बानो ने अपने बाप की बात में कोई भी दखल अंदाजी नहीं की थी, बल्कि वो चुपचाप उनकी बातें सुनती जा रही थी। मैंने ये फैसला किया है कि मैं दूसरी शादी कर लूं ताकि तुम्हें एक अच्छी माँ मिल जाए जो कि तुम्हारी तरबियत कर सके, क्योंकि मैं अकेला तुम्हारी तरबियत नहीं कर सकता, और वैसे भी तुम्हें एक माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने वालिद की बातें सुनकर बानो को एक बहुत बड़ा धचका लगा था। ये सोचकर कि उसके वालिद उस पर एक सौतेली माँ थोपना चाहते थे, लेकिन उसने इस बात का इजहार अपने वालिद से नहीं किया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इसकी वजह से परेशान हो। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी
जब उसने अपने मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकाला तो उसके वालिद ने खुद ही उससे पूछ लिया, बेटा मैं तुमसे तुम्हारी राय लेने आया हूँ। अगर तुम मुझे मना करोगी तो मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। ये सिर्फ तुम्हारा फैसला होगा कि तुम नई माँ चाहती हो या फिर नहीं। मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। बानो को लगा कि शायद ये शादी उसके वालिद की खुशी है, इसलिए उसने अपने बाबा से कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है, आप जब मर्जी शादी कर लें। बानो की ये बात सुनकर जाफर साहब ने उसको अपने गले से लगा लिया। कुछ देर वो दोनों बातें करते रहे। फिर जाफर साहब अपने कमरे में आ गए। अपने वालिद के जाने के बाद बानो इस बारे में बहुत सोचती रही। वो हरगिज ये नहीं चाहती थी कि उसकी माँ की जगह किसी दूसरी औरत को दी जाए, लेकिन वो अपने वालिद को खुश भी देखना चाहती थी। एक हफ्ते के बाद उन्होंने एक फरहत नाम की औरत से घर में ही सादगी से निकाह किया। वो बेवा थी। वो एक दारुल अमान में रहती थी। शुरू में फरहत बहुत चुप चुप रहती थी। शायद वो इस घर में नई नई आई थी, इसलिए झिझक रही थी। बानो ने उससे कोई भी बात नहीं की थी और ना ही वो करना चाहती थी। दिन गुजरते जा रहे थे और वो भी अपने पहले वाली रूटीन के साथ स्कूल जाती रही थी। फरहत को इस घर में आए हुए एक हफ्ता हो गया था और उस एक हफ्ते में उसने एक बार भी बानो से बात नहीं की थी, या फिर बानो ने भी खुद उसे बात करने का मौका नहीं दिया था। एक दिन बानो अपने स्कूल से वापस आई तो वो लाउंज में मौजूद सोफों पर ही बैठ गई, क्योंकि गर्मियों का मौसम था और उस वक्त बाहर बहुत गर्मी थी, जिसकी वजह से वो वहीं पर बैठ गई थी। वो वहीं पर सोफे के साथ टेक लगाकर आंखें बंद किए बैठी थी, जब अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने उसकी सौतेली माँ ट्रे में जूस का गिलास लिए खड़ी थी। बानो ने सवालिया नजरों से अपने सामने अपनी सौतेली माँ को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुम थकी हुई स्कूल से आई हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें जूस का गिलास बना दूं। ये जूस का गिलास पियो और कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर बानो के चेहरे पर अजीब से तासुरात ने बसेरा किया था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी कहे बगैर जूस का गिलास पीकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होकर नीचे आई तो सामने उसकी सौतेली माँ फरहत बेगम डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। वो कुछ भी बोले बगैर डाइनिंग टेबल की कुर्सी घसीट कर उस पर बैठ गई। उन्होंने बानो को प्लेट में खाना डालकर दिया तो वो खाने में मसरूफ हो गई। फरहत ने उससे कहा कि अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं किचन में ही हूँ। वो इतना कहकर किचन में वापस चली गई, जबकि पीछे बानो बिन अपने खाने में मसरूफ हो गई। कुछ ही देर में वो खाना खाकर वापस अपने कमरे में चली गई और अपना बैग खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। दिन गुजरते जा रहे थे और दिनों के साथ साथ वो अपनी सौतेली माँ की अच्छी बातों की वजह से उससे बात करना भी शुरू हो गई थी। अब वो उन्हें अपनी माँ ही कहा करती थी, जिससे फरहत को बहुत खुशी महसूस होती थी। फरहत बानो के सारे काम खुद करती थी, जिस पर बानो भी कोई एतराज नहीं करती थी, बल्कि कभी कभी तो बानो खुद फरहत को कोई काम कह देती थी। दिन अपनी पूरी रफ्तार के साथ गुजरते जा रहे थे और उनकी फैमिली भी पुरसुकून और खुश थी। मामूल की तरह आज भी वो सब रात के वक्त डिनर कर रहे थे और फिर सब अपना अपना खाना खाकर अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। बानो अपने कमरे से निकलकर जाफर साहब के कमरे की तरफ चल दी, क्योंकि उसने आज उनसे कोई जरूरी बात करनी थी। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर अंदर से इजाजत मिलने पर अंदर दाखिल हो गई। बाबा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बानो ने अंदर दाखिल होते ही कहा। जी कहो बेटा, आपको क्या बात करनी है? मुझसे। बाबा, मेरे स्कूल में ट्रिप जा रही है और मेरी क्लास के सारे बच्चे ट्रिप के साथ जा रहे हैं और मैं भी जाना चाहती हूँ, इसलिए आपसे इजाजत लेने आई हूँ। ठीक है बेटा, तुम चली जाना और जितने भी पैसों की जरूरत हो मुझसे ले लेना। बानो अपने बाप की बात सुनकर खुशी के साथ उनके गले लग गई और फिर उनका शुक्रिया अदा करके कमरे से बाहर आ गई। एक हफ्ते के बाद उनकी ट्रिप जानी थी, इसलिए वो मुतमईन थी काफी वक्त है इसके पास तैयारी करने के लिए। वो अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई और फिर कुछ ही देर में नींद की वादियों में उतर गई। सुबह बानो की आंख फजर के वक्त खुली थी। उसने फजर की नमाज अदा की और फिर कुरान पाक की तिलावत की। काफी देर गुजरने के बाद वो कमरे से बाहर निकली। उसका मकसद नीचे जाने का था और फिर जाते हुए उसके कानों में कुछ आवाजें आना शुरू हो गईं, जो कि उसके बाबा के कमरे के अंदर से आ रही थी। वो उनके कमरे के बाहर गई और अंदर से आने वाली आवाजों से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। आप इसे नहीं जाने देंगे और मैं नहीं चाहती कि वो कहीं भी जाए, और यही मेरा आखिरी फैसला है, लेकिन मैं उसे जाने से कैसे मना कर सकता हूँ। बानो वहां से नीचे आ गई और लाउंज में टहलने लगी। उसके जहन में बार बार अपनी सौतेली माँ की बात गूंज रही थी
कि वो उसके लिए इतना बुरा सोचती थी। बानो फरहत को एक अच्छी औरत समझती थी, लेकिन उसे आज महसूस हो रहा था कि वो भी एक सौतेली माँ है, और कोई भी सौतेली माँ अच्छी नहीं होती। कोई भी औरत किसी दूसरे की औलाद को कभी भी प्यार नहीं करती। वो भी ये सब कुछ सोच रही थी जब उसके वालिद और सौतेली माँ सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रहे थे। नाश्ते का वक्त हो चुका था, इसलिए मुलाजिमा ने पहले ही टेबल पर सबके लिए नाश्ता लगा दिया था। फरहत बेगम और जाफर साहब दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और बानो को भी वहां पर बुला लिया था ताकि वो भी नाश्ता कर ले। बानो बगैर कुछ बोले चुपचाप कुर्सी घसीट कर बैठ गई और नाश्ता करने में मसरूफ हो गई। नाश्ता खत्म करने तक उसने किसी से कोई भी बात नहीं की थी और ना ही किसी ने उससे कोई बात की थी। वो नाश्ता खत्म करके अपने कमरे की तरफ चल दी ताकि स्कूल जाने के लिए तैयार हो सके। कुछ ही देर में वो तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई थी। दिन गुजरते जा रहे थे और वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी सौतेली माँ से उसे और भी ज्यादा नफरत होती जा रही थी। फरहत बेगम बानो को कोई भी काम करने से रोकती तो वो उन पर गुस्सा हो जाती और वो काम जरूर करती जिससे वो मना करती थी। वो ट्रिप के साथ भी गई थी और इस हवाले से उसके बाबा ने उसे कुछ भी नहीं कहा था और ना ही उसकी माँ के मना करने पर उसे ट्रिप के साथ जाने से मना किया था, जिस पर वो खुश हुई थी कि उसके बाबा उसके साथ हैं और उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। वो अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करती थी और ये बात उसके वालिद बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो जब भी अपने वालिद से कोई भी ख्वाहिश कर देती तो उसके वालिद उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देते। एक दिन वो घर में अकेली थी क्योंकि उसकी सौतेली माँ और उसके बाबा किसी दावत पर गए हुए थे। बानो के बाबा ने उसे साथ जाने का कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था कि मैं वहां जाकर क्या करूंगी, जिस पर उन्होंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया था। वो लाउंज में टहल रही थी। जब उसे बोरियत महसूस होने लगी तो वो घर से बाहर निकल गई। वो अक्सर घर से बाहर निकलकर भी वॉक पर चले जाया करती थी और आज भी वो घर से वॉक करने की गर्ज से निकली थी। वो चलते चलते अपने घर से कुछ फासले पर आ गई थी। उनके घर से कुछ फासले पर एक ऐसा घर था जो काफी देर से बंद था। उस घर में कोई भी नहीं रहता था। वो घर बेहद खूबसूरत था और उस घर के अंदर बहुत से फलों के पौधे भी लगे हुए थे जिन पर उस वक्त बहुत से फल मौजूद थे। बानो ने उस वक्त घुटनों तक आती फ्रॉक के नीचे पैंट पहन रखी थी और ऊपर पोनी टेल की हुई थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो कई मर्तबा इस घर में जाने का सोचती थी लेकिन फिर अपनी सोच को तर्क कर देती थी, लेकिन आज वो इस घर में जाने का इरादा कर चुकी थी। वो घर के अंदर दाखिल होने लगी जब उसे गेट पर एक बहुत बड़ा ताला नजर आया, जिसे देखकर वो मायूस हो गई। लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बाद वो दीवार पर चढ़ गई और घर के अंदर कूद गई। घर के अंदर कूदने की वजह से कुछ आवाज पैदा हुई थी जो कि इस सन्नाटे को खत्म कर गई थी। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने एक और दरवाजा था। उस दरवाजे को देखकर बानो को कदरे मायूसी हुई थी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आई और उसने इधर उधर कुछ तलाश करने की कोशिश की। कुछ देर बाद ही उसे एक पत्थर मिल गया जिससे उसने उस ताले को तोड़ना शुरू किया। कुछ ज़रबों के बाद वो ताला खुद ब खुद टूट गया। उसने ताले को उस गेट से निकाला और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गई तो सामने का मंजर देखकर वो बहुत खुश हुई क्योंकि ये घर बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन गंदगी की वजह से उसकी खूबसूरती कुछ मान पड़ गई थी। अगर इस घर की सफाई की जाती तो ये घर किसी महल से कम नहीं था। बानो को एक बात की तशवीश हुई कि ये घर इतना खूबसूरत था तो ये घर इतनी देर से बंद क्यों था, लेकिन फिर सर झटक कर वो आगे बढ़ गई। वो आगे बढ़ती जा रही थी और साथ ही पूरे घर को देखती भी जा रही थी। वो पूरे घर को देखने में मसरूफ थी जब अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। वो सर झटक कर फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई और आगे बढ़ने लगी। वो एक गुलदान के पास खड़ी उसे देख रही थी जो कि बहुत खूबसूरत था, जब अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन वो हाथ कम आग ज्यादा लग रहा था। उसने मुड़कर अपने कंधे पर देखा जहां पर कुछ भी नहीं था। उसे लगा शायद ये इसका वहम था, इसलिए उसने सर झटक दिया। कुछ ही देर में उसने पूरा घर देख लिया तो बाहर जाने के लिए वापस मुड़ी। वो दरवाजे के करीब पहुंची। उसके सामने बहुत से जमीन पर फूल बिखरे पड़े थे, जिसको देखकर बानो के चेहरे पर अजीब से तासुरात पैदा हो गए। उसे इस बात की तशवीश हुई कि ये फूल यहाँ पर अचानक कैसे आ गए, क्योंकि जब वो अंदर दाखिल हुई तो यहाँ पर फूलों का कोई भी नामो निशान नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद करके मस लीं और फिर उन्हें खोला तो उसे फिर एक बार हैरत का झटका लगा कि वहां पर किसी भी फूल का कोई नामो निशान नहीं था। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई और घर से बाहर निकल गई। वहां से वो सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो गई और कुछ ही देर में घर पहुंच गई।
घर पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि उसकी सौतेली माँ और उसके वालिद घर आ चुके हैं। इसलिए वो सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई और जाकर बेड पर सोने के लिए लेट गई। उसकी आंख शाम को खुली थी जब मुलाजिमा उसके कमरे में उसे खाने के लिए बुलाने आई थी। वो जल्दी से बेड से उठी और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर आई और ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा साफ करने लगी जब अचानक उसकी नज़र ड्रेसिंग पर पड़े गुलाब की तरफ उठी। बानो को लगा कि शायद वो गुलाब वो खुद ही लेकर आई थी, क्योंकि इस घर में जहां पर वो गई थी वहां से उसने कुछ फूल तोड़े थे। वो सर झटक कर वहां से अब नीचे आ गई और जाकर खाने की टेबल पर बैठ गई। अब वो ज्यादा नहीं बोलती थी। वो अपने घर में भी चुपचाप रहती थी। बानो के स्कूल में भी किसी से खास दोस्ती नहीं थी, इसलिए वो स्कूल में भी अकेले अकेले ही रहती थी। वो जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी वहां पर लड़के और लड़कियां दोनों ही हुआ करते थे। मामूल की तरह आज भी वो अपने स्कूल गई थी। यहाँ आज उसकी क्लास में एक नया लड़का आया था जो कि बहुत ही प्यारा था। बानो ने उसकी तरफ देखा तो देखती ही रह गई, क्योंकि उस लड़के के चेहरे पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट थी। बानो को उसके चेहरे से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था, फिर भी उसने किसी तरह अपनी नजरें झुका ली और अपने काम में मसरूफ हो गई। टीचर उस लड़के का सबसे तारुफ करवा रही थी और तारुफ करवाने के बाद उसे उसकी सीट पर बैठने का कहा। इत्तेफाक से वो बानो के पीछे ही बैठा था, क्योंकि उसके पीछे वाली सीट ही थी। बानो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। कुछ ही देर में क्लास शुरू हो गई तो सब टीचर की जानिब मतवज्जे हो गए। ब्रेक होने वाली थी, इसलिए वो अपना बैग पैक करना शुरू हो गई। कुछ ही देर में बेल की आवाज आई तो सब बच्चे बाहर की तरफ जाना शुरू हो गए। बानो भी अपनी चेयर से उठने ही लगी थी जब उसे अपने पीछे से एक आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही सुबह वाला लड़का उसे बुला रहा था। उसने अपने इर्द गिर्द देखा कि शायद वो किसी और को बुला रहा था, लेकिन जब कोई ना मिला तो बानो ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो उस लड़के ने अस्बात में सर हिला दिया। आपका नाम क्या है? उस लड़के ने बानो से पूछा। बानो कुछ देर उसे हैरानगी से देखती रही, फिर उसने कहा कि मेरा नाम गुलबानो है। ओह, प्यारा नाम है तुम्हारा। तुम्हारा नाम क्या है? बानो ने उस लड़के से पूछा। मेरा नाम साहिर है। तुम्हारा नाम भी प्यारा है, बानो ने कहा तो उस लड़के के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आई। मैं यहाँ पर नया हूँ, क्या तुम मुझे कंपनी दोगी? क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है और मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता। बानो कुछ देर सोचती रही, फिर उसने अस्पात में सर हिला दिया। वो दोनों वहां से कैंटीन की तरफ चल दिए। उन्होंने कैंटीन से कुछ खाने की चीजें ली और फिर कैफेटेरिया में जाकर बैठ गए। खाने के दौरान वो एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। बातें करते करते उन्होंने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। छुट्टी के वक्त भी दोनों एक साथ ही बाहर निकले थे। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और दिन गुजरने के साथ साथ उनकी दोस्ती में इजाफा होता जा रहा था। बानो भी अब बहुत खुश रहने लगी थी। वो घर में उससे फोन पर कितनी देर तक बातें करती रहती थी। वो कई बार बानो के घर भी आ चुका था, जिस पर उसके बाबा ने कोई भी एतराज नहीं किया था, क्योंकि उनके लिए यही काफी था कि उनकी बेटी अब खुश है और वो इस खुशी को छीनना नहीं चाहते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ बानो कब उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई उसे खुद भी पता नहीं चला। साहिर भी उसका बहुत ख्याल रखता था, जिससे उसकी मोहब्बत में और भी इजाफा होता जा रहा था। वो दोनों स्कूल इकट्ठे जाते थे और इकट्ठे ही वापस घर आते थे। बानो एक बार भी साहिर के घर नहीं गई थी और ना ही उसने उसके घर के बारे में पूछा था। दिन गुजरने के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही बेतकल्लुफी से बातें करते थे। साहिर से मिलने के बाद वो अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश रहने लगी थी। वो किसी भी चीज की ख्वाहिश करती तो वो चीज उसे बहुत जल्द मिल जाती थी, जिस पर वो हैरान हो जाती थी। बानो साहिर से इतनी मोहब्बत करने लगी थी कि उसके दूर जाने का ख्याल भी वो अपने जहन में लाने से डरती थी और ये भी जानती थी कि साहिर भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता है। वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ तब्दील हो गया था, लेकिन उसकी साहिर के साथ दोस्ती और मोहब्बत में कोई भी फर्क नहीं आया था। वो अपनी सौतेली माँ से अब भी कोई बात नहीं करती थी, क्योंकि अब वो अपनी सौतेली माँ से मुकम्मल तौर पर बदगुमान हो चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उससे बात करने के लिए बहुत से बहाने तलाश करती थी, लेकिन फिर भी वो उनसे बात नहीं करती थी और उनकी किसी भी बात का हाँ या ना में जवाब दे देती। बानो अब पहले से ज्यादा साहिर से बातें करने लगी थी और अब तो वो ज्यादा वक्त साथ ही रहती थी। वो दोनों कभी घूमने चले जाते थे तो कभी कहीं पर चले जाते थे। बानो भी उसके साथ बहुत खुश रहती थी। एक दिन बानो अपने कमरे में लेटी साहिर के बारे में सोच रही थी जब अचानक साहिर उसके पास आ गया। साहिर को वहां पर देखकर बानो को हैरानगी हुई थी कि वो उस वक्त यहाँ पर कैसे आ गया। साहिर उस वक्त उसके पास खड़ा था और बानो को ही मुसलसल देखे जा रहा था। बानो को लगा कि शायद वो कुछ कहना चाहता है,
اس لیے یہاں پر آیا ہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ رات کے اس وقت وہ یہاں اس کے کمرے میں کیسے آ گیا، اور اس نے تو دروازہ بند کیا تھا۔ لیکن پھر سر جھٹک کر وہ اس جانب متوجہ ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جو اپنی ہی دھن میں کچھ گنگنا رہی تھی اسے یہاں دیکھ کر پوچھ لیا۔ کچھ نہیں، بس تمہیں دیکھنے کا جی چاہ رہا تھا اس لیے چلا آیا، لیکن شاید تم میرے یہاں آنے سے خوش نہیں ہوئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس اس لیے حیران تھی کہ اس وقت گھر کے دروازے بند ہوتے ہیں تو تم اندر کیسے آ گئے؟ بانو نے اپنے اندر مچلتا سوال آخر اس سے پوچھ ہی لیا، جو وہ کب سے پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن پوچھ نہیں پا رہی تھی۔ بس میں آ گیا، اور یہ سب کچھ چھوڑو اور مجھ سے باتیں کرو۔ ساحر بانو کو لے کر بالکنی میں آ گیا اور سامنے موجود آسمان کو دیکھنے لگا۔ بانو نے بھی پھر اس بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ پھر ساحر نے بانو سے کہا کہ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہیں جو بھی کہنا ہے تم کہہ سکتے ہو، اس طرح تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا ہے، کیونکہ میں نے تم سے ایک جھوٹ بولا تھا کہ میں ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور لندن سے یہاں پر آیا ہوں۔ میں نے تم سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ میں یہاں پر نہیں رہتا، بلکہ میں تو اس دنیا میں ہی نہیں رہتا۔ اس کی بات سن کر بانو کے چہرے پر حیرانی کے اثرات نمودار ہوئے، کیونکہ وہ اس کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، بانو نے اس سے کہا تو اس نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی اور پھر اس طرف گھوم گیا۔ میں ایک انسان نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جن ذات ہوں اور جنات کی دنیا سے یہاں پر آیا ہوں۔ میں جنات کی دنیا سے یہاں پر انسانی دنیا دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے یہاں پر رہنے کے لیے کسی ویران خالی جگہ کی ضرورت تھی، جو کہ مجھے یہاں پر ایک گھر مل گیا جہاں میں رہنے لگا۔ تم ایک دن اس گھر میں آئی تھی، اور جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا، اس لیے میں تمہارے سامنے انسانی شکل میں آیا تھا تاکہ تم مجھ سے خوف زدہ نہ ہو۔ میں نے تمہارے اسکول میں بھی آنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کیا تھا۔ میں تمہیں بس خوش دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں تمہیں اپنا سچ بتا کر خود سے بدظن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ میں بہت جلد اپنی دنیا میں واپس لوٹا دیا جاؤں گا، اور پھر شاید کبھی بھی اس دنیا میں واپس نہ آ سکوں۔ میں جس گھر میں رہتا تھا وہاں کے مالک کو علم ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کسی جن کا بسیرا ہے۔ اس مالک کے مکان نے کسی عامل کی مدد سے مجھ پر حملہ بھی کیا تھا۔ وہ عامل بہت طاقتور ہے جس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجھے اس گھر سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ میں بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مجھے اس گھر سے نہ نکال پائے، لیکن پھر بھی میری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ ساحر نے اپنی بات مکمل کی تو اس نے بانو کی طرف دیکھا، جو کہ حیرانگی سے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ ساحر وہاں سے غائب ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بانو اس وقت اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ بانو اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کی باتوں کو سوچنے لگی۔ بانو کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ساحر ایک جن زادہ ہے، اور اسے اس بات سے بھی زیادہ حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ ایک جن زادے سے محبت کرتی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر بیڈ پر بیٹھی اس بارے میں سوچتی رہی، لیکن پھر سب کچھ سوچنے کے باوجود بھی اس کی ساحر کے لیے محبت میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ ابھی بھی ساحر سے محبت کرتی تھی۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ بانو کے لیے وہ اس کی محبت تھا جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس نے اپنے پورے کمرے میں دیکھا، کیونکہ ساحر ابھی کچھ دیر پہلے وہاں پر ہی بیٹھا تھا، لیکن پورے کمرے میں دیکھنے کے باوجود بھی وہ وہاں پر نہیں تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ یہاں سے چلا گیا۔ اس نے اسے زور زور سے آوازیں دینا شروع کی، اور کچھ ہی لمحوں میں ساحر وہاں پر واپس آ گیا، جسے دیکھ کر بانو کی جان میں جان آئی تھی۔ ساحر کے وہاں پر آتے ہی بانو اس کے ساتھ لپٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ ساحر نے اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے دل کا بوجھ کم ہو جائے۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی چپ ہو گئی اور اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ ساحر، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ایک جن زادے ہو۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اور میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے، اور ساحر سے باتیں کرتے کرتے بانو کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ اسے سوتا دیکھ کر ساحر اسے کمبل اڑا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگلے دن اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو اس کے اسکول کو لگنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ وہ جلدی سے واش روم میں گئی اور تیار ہو کر باہر آ گئی اور ناشتہ کیے بغیر ہی اسکول کی طرف روانہ ہو گئی۔
उसका इरादा था कि वहां पर जाकर नाश्ता कर लेगी। अपनी क्लास में जाकर वो कितनी ही देर साहिर का वेट करती रही, लेकिन उसका कहीं भी नामो निशान नहीं था। पीरियड की बेल भी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो नहीं आया था, जिसकी वजह से बानो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। वक्त भी गुजरता जा रहा था और वक्त गुजरने के साथ साथ बानो की परेशानी में भी इजाफा होता जा रहा था। उसे लगा शायद वो किसी मसले की वजह से ना आया हो। घर जाकर उसने साहिर को बहुत पुकारा था, लेकिन वो वहां पर भी नहीं आया था, जिसकी वजह से उसे तशवीश होने लगी कि वो कहीं अपनी दुनिया में वापस तो नहीं चला गया। दिन गुजरते जा रहे थे और साहिर का कोई पता नहीं था, और ना ही वो किसी को इस बारे में बता सकती थी कि साहिर एक जिन ज़्यादा था। उसकी क्लास में भी इस हवाले से कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी, और ना ही किसी ने साहिर के बारे में पूछा था कि वो क्यों नहीं आ रहा था। वो भी इस बारे में किसी से कुछ पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो जिन ज़्यादा है। वो साहिर से मिलना चाहती थी और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने बहुत कोशिश की कि वो साहिर से मिल ले, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई थी। वो उस घर में भी गई जहां पर साहिर उस पर आशिक हुआ था, लेकिन वहां पर जाने से भी उसे नाकामी हासिल हुई थी, क्योंकि वहां पर भी उसका कोई नामो निशान नहीं था, जिससे वो कदरे मायूस हुई थी और वापस घर लौट आई थी। दिन गुजरने के साथ साथ उसकी हालत भी खराब होती जा रही थी। बानो हर वक्त रोती रहती थी और बार बार यही दुआ करती रहती कि उसे साहिर के पास जाना है। वो साहिर की मोहब्बत में इतना आगे चली गई थी कि वो उसके साथ रहना चाहती थी, ना कि उससे दूर रहना चाहती थी। उसके पास जाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो इस बारे में अपने वालिदैन को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसके वालिदैन उसकी बात पर कभी भी यकीन नहीं करते। उसे अचानक एक आमिल का ख्याल आया कि कोई आमिल उसकी मदद कर सकता है। उसने गूगल की मदद से किसी आमिल को सर्च किया तो उसे एक आमिल मिल गया जो कि जिन्नात से बातें कर सकता था। बानो ने ऑनलाइन ही उस आमिल से बात की और उस आमिल से मिलने को कहा, तो उस आमिल ने उसे अपनी जगह का पता दे दिया। इत्तेफाक से वो इसी शहर में रहता था जिस शहर में बानो रहती थी, जिसकी वजह से बानो आसानी से उस आमिल के पास जा सकती थी। उसके वालिदैन 2-3 दिन के लिए घर से बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से उसने इस मौका को गनीमत जाना और उस आमिल से मिलने के लिए चली गई। वो काफ़ी मुश्किल के बाद उस आमिल के पते पर पहुंची थी। वहां पहुंचकर बानो ने उस आमिल को अपने बारे में सब कुछ बता दिया और उसने ये भी कहा कि वो इस जिनजादे से मिलना चाहती है और इससे बात करना चाहती है, जिस पर उस आमिल ने कहा कि ये एक खतरनाक अमल है, इसमें वो जिन्नात हम पर हमला भी कर सकते हैं। जिस पर बानो ने उस आमिल से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो नेक जिनजादा है, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप मुझ पर भरोसा रखें। उस आमिल ने बानो की बात मान ली और फिर अपने और बानो के गिर्द आटे की मदद से दायरा लगा दिया और बानो को कहा कि इस दायरे से बाहर मत निकलना। अगर तुम इस दायरे से बाहर निकली तो शायद तुम्हारी जान चली जाए या तुम्हें कोई और नुकसान भी पहुंच सकता है। जिस पर बानो ने इस बात में सर हिला दिया। कुछ ही देर में उस आमिल ने अपना सामान तरतीब दिया और फिर कुछ मंतर पढ़ने लगा। काफी देर मंतर पढ़ने के बाद अचानक वहां पर घुप अंधेरा हो गया। बानो ये सब देखकर डर गई, लेकिन क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं किया था, बानो ने अपनी आंखें खोल ली तो सामने ही उस अंधेरे में साहिर खड़ा था, जिस पर रोशनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो बानो को साफ दिखाई दे रहा था। उसको देखकर बानो की जान में जान आई थी, क्योंकि वो बहुत वक्त के बाद उसे देख रही थी। साहिर, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम जानते थे कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुमने कहा था तुम मेरे साथ रहोगे, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी बात सुनकर साहिर ने कहा, मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया, मुझे इस आमिल ने जबरदस्ती इस दुनिया में भेज दिया और मुझ पर कोई ऐसा मंतर किया है कि जिसकी वजह से मैं अब कभी भी तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकता। हम दोनों की मंजिल एक नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि एक जिन और इंसान की कभी भी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये नामुमकिन अमल है। हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन ना तो तुम मेरी दुनिया में आ सकती हो और ना ही मैं तुम्हारी दुनिया में रह सकता हूँ। इसलिए हम दोनों को अपनी अपनी दुनिया की तरफ ही रहना चाहिए। हम दोनों के रास्ते बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए, क्योंकि यही हम दोनों के लिए बेहतर है। ये मेरी तुमसे आखिरी मुलाकात है, क्योंकि इसके बाद मैं तुमसे मुलाकात नहीं कर सकता, क्योंकि इससे तुम्हें नुकसान होगा और ये मैं हरगिज नहीं चाहता। तुम्हारी सौतेली माँ एक अच्छी माँ है और तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। तुम्हें उनके हवाले से कोई गलत फहमी हुई है,
اس لیے تمہیں ان سے بات کرنی چاہیے تاکہ یہ غلط فہمی ختم ہو سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھی زندگی گزارو اور ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے غائب ہو گیا اور بانو اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کے جاتے ہی وہاں پر پھر سے لائٹ آ گئی تھی۔ وہ بھی بھیگے چہرے کے ساتھ اٹھی اور اس عامل کی طرف آئی اور اسے اس کی فیس دی اور پھر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور بہت دیر تک ساحر کی باتوں کو سوچتی رہی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ ساحر بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، مجھے اس کی بات ماننی چاہیے تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب دوبارہ اپنی زندگی میں مگن ہوگی اور سب کے ساتھ اچھے سے رہے گی اور پھر سے نئے دوست بنائے گی، کیونکہ پہلے اس کے کوئی دوست نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ کافی چپ چپ رہتی تھی۔ بانو کو احساس ہوا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اگلے ہی دن اپنی سوتیلی ماں سے معافی مانگی تھی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتی تھی، جس پر اس کی ماں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر سے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ اپنا پہلا قدم بڑھا چکی تھی۔ دن بھی گزرتے جا رہے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ بہت خوش مزاج تھی اور سب سے بہت زیادہ باتیں کیا کرتی تھی، اور اب اس کے بہت زیادہ دوست بھی بن چکے تھے۔ اب وہ اکیلی نہیں رہتی تھی۔ بانو کو ساحر ابھی بھی یاد آتا تھا، لیکن وہ اس بات پر صبر کر لیتی تھی کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے۔ اسے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ بانو اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی اور اس کا خیال تھا کہ شاید ساحر بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوگا۔ اس کی زندگی میں بھی اب صرف اور صرف سکون ہی تھا، کیونکہ غم کے سارے بادل چھٹ چکے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔